to be an entrepreneur. Now, what do you think are the skills that are required to be an entrepreneur? ऐसी कौन सी skills हैं जो business में ज़रूरी होती हैं? Anyone? Risk taking. Okay. What are the skills that is required? Yes. Marketing skill. Marketing skill, very good. He should know what he is doing. If he wants to do some trade, physical about that. Yeah. Say he wants to manufacture something. I think he should be knowing it himself. So basically sector skills. Yes, second skills from one to the end. Yes, agreed. So, yeah. So these are some skills that you need if you want to start a business. You should know technical skills, how to use a computer. You should know sector knowledge. If I want to do beekeeping, I should know about it. You should know sales and marketing. How will you sell your product? How will you market your product? You should know about financial management, because in business, you also want to save and use money for yourself, but you also want to reinvest in a business. So you should know financial management. You should know business planning, and if you're planning to hire a lot of people, you should know leadership skills, कि आपको अपनी टीम को मैनेज कैसे करना है. All of us need leadership skills in our life. So मिशन युवा में हमने आइडेंटिफाई किया कि कैपेसिटी बिल्डिंग शुड बी वन सेक्शन जहाँ पे हम लोगों को ये सारी स्किल्स सिखाएं. लोन तो सब दे देते हैं, गाइडेंस तो सब दे देते हैं, बट स्किल इज समथिंग जो ज्यादा लोग नहीं देते हैं, और लोग डिफरेंट एरिया से जाके स्किल्स लें. इससे अच्छा हम उनको एक ही जगह पे कैपेसिटी बिल्डिंग भी प्रोवाइड करें, क्रेडिट भी प्रोवाइड करें, कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करें, और कल्चर भी बिल्ड करें. So Mission Yuva में skilling has 4 key components. Starting with the first component, entrepreneurship and business management. इस पर्टिकुलर कोर्स में there will be different modules, और एक entrepreneur की basic starting यहीं से होगी. What is entrepreneurship? How do you become an entrepreneur? क्या ज़रूरतें होती हैं बिजनेस को स्टार्ट करने में, क्या लीगल कंप्लायंस होती है, हाउ कैन यू मैनेज योर बजट, योर फाइनेंस, एनीथिंग रिलेटेड टू स्टार्टिंग अ बिजनेस यू कैन लर्न फ्रॉम हियर. सेकंड, सेक्टर स्पेसिफिक स्किल्स. आपको जिस भी सेक्टर में अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, आप यहाँ से सीखेंगे हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम बेसिक स्किल टू एडवांस लेवल स्किल. यू कैन लर्न एवरीथिंग अंडर दिस कोर्स. नेक्स्ट अप, टेक्नोलॉजी. टेक्नोलॉजी के बिना बिजनेस चलाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दीज डेज. आपको एक्सेल कैसे यूज करना है, बजट कैसे मेंटेन करना है, ऑनलाइन बैंकिंग कैसे करनी है, ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएंगी. And last, we have innovation and design thinking. So innovation and design thinking is particularly important for new innovatives. जिनको innovative ideas चाहिए, problems को solve करने के लिए, तो ये उनके लिए काफी helpful है. We'll see all these one by one. Starting with entrepreneurship course, ये कुछ examples हैं जो modules हमने के पास entrepreneurship वाले course में डाल रखे हैं, which is introduction to entrepreneurship, business planning, leadership and management, and also budget and finance. Now, if an entrepreneur comes to you and asks you कि मुझे कोर्स क्यों करना चाहिए, you will tell them कि आपको ये कोर्स इसलिए करना चाहिए. If you want to learn how to plan, start and grow your business, if you want to learn कि budgeting कैसे करते हैं, banking कैसे करते हैं, financial decisions कैसे लेते हैं, you should do this course. If you want to learn about marketing, strategy, expansion tips, then you should do this course. If you want to learn rules and regulations of doing a business, then you should do this course. So अगर कोई आपके पास इन problems के साथ आता है, so entrepreneurship and business management program is the course जो आप उनको बताएंगे. Next up, we have sector specific programs. क्योंकि इसमें बहुत सारे कोर्स होंगे, इसमें कुछ डिफाइंड मॉड्यूल नहीं है, हर कोर्स के हिसाब से डिफरेंट मॉड्यूल होगा. बट इफ एन एंटरप्रेन्योर कम्स टू यू विद दीज प्रॉब्लम्स, इफ दे वांट टू गेन एक्सपर्टीज इन अ सेक्टर, इफ दे वांट टू वर्क इन अ न्यू सेक्टर जो यहाँ पे लोग काम नहीं करते, इफ दे वांट टू स्टैंड आउट विद देयर कंपटीशन, यू वुड सजेस्ट देम सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स. नेक्स्ट अप, वी हैव टेक्नोलॉजी फॉर एंटरप्रेन्योर्स. If they want to learn essential computing skills, understanding emerging technologies, learning branding, social media, e-commerce, and if they want to do digital banking, you will suggest them this particular course. And last up, we have design thinking. Now these are the modules for design thinking course where the entrepreneur might want to learn what is design thinking, what is innovation, what is product management, how can I do prototyping. And these are few of the problems that the entrepreneur might come to you with if they want to learn how to identify challenges, generate ideas, and develop innovative solutions for their business.
if they want to use design thinking to understand the customer, if they want to learn prototyping, testing and understand how to manage innovation, तो आप उनको ये वाला कोर्स सजेस्ट करेंगे. Now comes an important part कि हमने courses बना लिए, but how will we deliver them? क्या मोड होगा डिलीवरी का? We have identified 3 modes of delivery for these sessions: online, offline and hybrid. Now when we talk about online sessions would be do-it-yourself courses जो आप अपने self-paced learning करेंगे through the Mission Yuva app. When we talk about offline courses, they will be live courses at SBDU centers जहाँ पे लोग live sessions में आके सीखेंगे. When we talk about hybrid courses, तो इसमें online courses और offline courses दोनों होंगे. कुछ कंपोनेंट आप ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए सीख सकेंगे, कुछ कंपोनेंट की आपको लाइव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग चाहिए होगी तो उसको आप ऑफलाइन सीखेंगे. कुछ बेनिफिट्स हैं मोड्स ऑफ डिलीवरी के. वन पॉइंट आई वांट टू से कि इसमें जैसे आप लोगों ने मिशन यूथ में भी जैसे तेजस्विनी में आपके ट्रेनिंग्स होते हैं, कई दफ़ा प्रॉब्लम होता है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे नहीं आ सकता है. तो ये हाइब्रिड मोड होने से ये फायदा है कि अगर आपने जैसे डिस्ट्रिक्ट का कोई कोना है वहाँ पे जैसे 20 इंटरप्रेन्योर हो गए जिनके लोन अप्रूव हो गए, तो आप अगर आपके पास कोर्स कंटेंट जो है वो ऑनलाइन है, क्वालिटी कोर्स है, then one resource person from the SBDU can go and deliver the course there, because effectively मिशन यूथ में जो है आपका कैपेसिटी बिल्डिंग हो नहीं रहा है. मतलब बेसिकली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक आना अपना डेली का जो है मीन्स वेज छोड़ के वो बहुत मुश्किल है किसी के लिए भी. दैट्स वाई ये हाइब्रिड एंड जो मतलब इसमें ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ही बिल्कुल छोड़ दिया कि करो ये वो भी इफेक्टिव होता नहीं है. तो बट द पॉइंट इज दैट कि अगर डिस्ट्रिक्ट का इंटीरियर एरिया भी है वहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई सेटअप मिल ही जाएगा आपको. पॉलिटेक्निक कॉलेज मिल जाएगा, ITI मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप कोर्स डिलीवर कर सकते हो. बट आपको स्टैंडर्ड कोर्स कंटेंट होगा विच इज इन द ऑनलाइन. एंड उसमें SBDU सेंटर से कोई भी रिसोर्स पर्सन चला गया, JKEDI से कोई रिसोर्स चला गया या कैरियर काउंसलिंग ऑफिस से चला गया, एम्प्लॉयमेंट, आप लोग ऑल यू आर क्वालिफाइड, आप लोग एक्सपर्ट हो. आप ऐसा मत सोचो कि यू गाइज आर ले पर्सन एंड ऑल. आप 10 बार कोर्स करोगे, खुद सीखोगे, देन यू कैन इजीली गाइड देम विद ऑल दोस कंटेंट. तो इस वजह से ये हाइब्रिड और मिशन युवा का जो ऐप है उसमें जो वीडियोस है उसको यूज करके जब आप डिलीवर करोगे तो एक ये इंश्योर होगा कि एक क्वालिटी कंटेंट जाएगा. कई दफा अगर आप खुद से गए और एकदम से डिलीवर करने लगे तो हो सकता है कि कुछ आप छूट गया, कुछ बच गया, लेकिन अगर ये कंटेंट होगा तो आप अच्छे से इंटीरियर एरिया में भी आप डिलीवर कर सकोगे. Yes, coming to the mode of delivery, so online courses will be delivered through Mission Yuva app. हम आपको भी लाइव डेमो भी दिखाएंगे कि Mission Yuva पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोर्सेज कैसे एक्सेस करते हैं, और जैसे जैसे हम उसमें न्यू कोर्सेज ऐड करते जाएंगे हम आपको वो भी फ्रेश ट्रेनिंग थ्रू वीडियोस एंड थ्रू ट्यूटोरियल्स वो बताते रहेंगे. When it comes to offline, they will be delivered through SBDUs, and when we talk about hybrid, they will be delivered through both online Mission Yuva app and offline through SBDUs. Now let's talk about what training is right for an entrepreneur. हर entrepreneur different problems के साथ आएगा, different skill level के साथ आएगा, different education level के साथ आएगा. तो किसको आपको कौन सी ट्रेनिंग सजेस्ट करनी है? When we talk about nano entrepreneurs, तो हर nano entrepreneur को ये 3 trainings compulsorily करनी है. Entrepreneurship and Business Management program, sector specific program for that particular sector जिसमें वो अपना business start करना चाहते हैं, and technology for entrepreneur. When we talk about MSMEs and new innovatives, उनको ये चारों trainings करनी है because innovation, being able to do innovation and design thinking दोनों के लिए काफी useful हो जाती है. Now let's talk about your roles and responsibilities. अब इसको बहुत सिंप्लीफाई कर दिया है कि कोई अगर आपके पास स्किलिंग के लिए आता है तो 3 स्टेज होंगे उसमें. प्री स्किलिंग, जो स्किलिंग से पहले, ड्यूरिंग स्किलिंग जब वो कोर्सेज कर रहा होगा, एंड पोस्ट स्किलिंग. तो आपको तीनों टाइम पे बहुत छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो उनको सपोर्ट करने के लिए आपको करनी है. तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं. For pre-skilling, you first have to suggest them relevant courses based on उनकी लिटरेसी क्या है, उनका एजुकेशन लेवल क्या है, और वो किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल है. अगर मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, मैं इजीली इंग्लिश कोर्स कर सकती हूँ, बट अगर मुझे सिर्फ उर्दू या कश्मीरी आती है तो आप मुझे हिंदी या इंग्लिश के कोर्स सजेस्ट नहीं करेंगे, आप तब मुझे उर्दू के कोर्स सजेस्ट करेंगे. अगर मुझे ऑलरेडी नॉलेज है मेरे सेक्टर के बारे में तो आप मुझे कोई एडवांस या इंटरमीडिएट कोर्स सजेस्ट करेंगे. पर अगर मैं सिर्फ अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो आप मुझे बिगिनर कोर्स सजेस्ट करेंगे. तो आप प्री स्किलिंग में उनको कोर्सेज सजेस्ट करेंगे और उनको मिशन युवा ऐप यूज करना सिखाएंगे
कि आपको मिशन युवा ऐप यूज कैसे करना है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। आपको ट्रेनिंग सेक्शन में कैसे जाना है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप सेक्शन में कैसे जाना है, उसमें मॉड्यूल्स कैसे एक्सेस करने हैं, आप उनको वो देंगे। When we move to hybrid, same thing. First step is always कि आप उनकी first step is संजय। सभी के लिए ये सब जिस चीजें ये पूरे लेक्चर में हुआ, जब तक अगर ये पूरा बेस्ट हो जाएगा, अगर आप ऐप यूज करें, जैसे मैंने कल 3 चीज बोला था, बेसलाइन सर्वे का डेटा लास्ट में कवर करेंगे, ऐप के बाद जैसे मैंने बताया ये सब कुछ है, बट अगर जब तक आप यूज नहीं कर पाते So first step in all these delivery modes and everything is कि आप उनको relevant courses suggest करें. They will trust you with their course recommendations and you will recommend them courses based on their literacy, language, level of education and everything. And second step in hybrid is आप उनके लिए एक structural blend बनाएंगे. आप उनको बताएंगे कि ये courses आप online करके आओ, फिर hands on training के लिए आप हमारे पास इस तारीख को इस टाइम पे आ जाना, हम आपको सिखा देंगे. When we talk about offline, आप पहले उनको कोर्स सजेस्ट करेंगे और फिर आप उनके लिए एजेंडा बनाएंगे, उनको बताएंगे कि ट्रेनर से आपको ट्रेनिंग लेनी है, हम आपको अगर ट्रेन करेंगे तो क्या टाइम है, क्या शेड्यूल है, ये सब चीज़ें आप उनको बताएंगे. जब हम ड्यूरिंग स्किलिंग की बात करते हैं तो उसमें पॉइंट है कि आपको सबसे पहले तो देखना है कि वो एंटरप्रेन्योर कर तो रहा है ना ट्रेनिंग. आपने उसको कोर्सेज सजेस्ट कर दिए, वो घर चला जाएगा, वो नहीं करेगा. स्पेशली जब हम ऐप की बात करते हैं, आपने उसको बता दिया आप पे क्या कोर्स करना है, बट वो कभी करे ही ना, तो आपको इंश्योर करना है कि वो रेगुलरली आप उनको चेक कीजिए, कॉल कीजिए, उनसे बात कीजिए कि वो एक्चुअली में कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. और अगर उनको कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह मिल रहे हैं तो उसको भी देखिए. सिर्फ उनकी कर रहे हैं पर ट्रस्ट मत कीजिए, उनसे पूछिए इस कोर्स में सर्टिफिकेट मिलता है, तुमको सर्टिफिकेट मिला, तुम्हारी प्रोग्रेस कितनी % हुई इस कोर्स में. उस वेबसाइट में ही आपको नेक्स्ट टॉपिक ऑफलाइन. तो ऑफलाइन में भी आपको उनके लिए सेशंस कंडक्ट कराने हैं और उनकी अटेंडेंस देखनी है. अगर वो रोज आ रहे हैं तो मतलब उनको काफी सारी चीजें समझ आ रही हैं और वो एक्चुअली बेनिफिट उठा पा रहे हैं इन चीजों का. तो आपको ये सब चीजें असेस करनी है. जब हम बात करते हैं पोस्ट स्किलिंग, आपको क्या करना है. उन्होंने स्किलिंग ले ली, बट आपको उन्हें और कोर्सेज अगर उनकी इंप्रूवमेंट के लिए हैं, अगर आपने अभी उन्हें बिगिनर कोर्स बताए थे, आप उनको इंटरमीडिएट कोर्स बताइए, उनको एडवांस कोर्स बताइए, ताकि इंश्योर कीजिए कि वो कंटिन्यूअसली सीखते रहें. और हेल्प एनकरेज देम कि आप जाके अपने पीयर्स से, अपने और दोस्तों से जो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं उनके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें और उनको भी सिखा सकते हैं चीज़ें. जब हम हाइब्रिड की बात करें तो उनको और एडवांस कोर्सेज में एनरोल कीजिए और उनकी ग्रोथ को चेक कीजिए कि आपको कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं अपने बिजनेस में. सेम गोज फॉर ऑनलाइन. उनको उनकी जर्नी को ट्रैक कीजिए कि उन्होंने जो सीखा है वो कितने अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं. Now we'll एक बार 2 केस स्टडीज डिस्कस करते हैं. वेरी इजी केस स्टडीज. I'll ask you 2 questions. आपको बताना है कि इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए कौन सा कोर्स सूटेबल है. Let's meet Asha. Now Asha wants to start a tailoring, सिलाई बुनाई का बिजनेस. एंड उनकी प्रॉब्लम ये है कि मैं घर से दूर तो नहीं आ सकती, घर में मेरे पास बहुत काम है, तो मैं हर रोज 7 बजे आपके पास नहीं आ सकती. आप मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं ट्रेनिंग कर लूं पर मेरा कोई स्केड्यूल नहीं है. तो हाउ विल वी हेल्प आशा, क्या सजेस्ट करेंगे मुझे. एंड शी इज अ नैनो एंटरप्रेन्योर. आपसे मुझे 2 चीजें चाहिए. एक, उनको आप कौन सा कोर्स सजेस्ट करेंगे और दूसरा आप उनको कौन सा मोड ऑफ डिलीवरी सजेस्ट करेंगे. कटिंग एंड टेलरिंग ओके, ऑनलाइन योरसेल्फ कोर्सेज. हाँ जी. सो आप उनको हाइब्रिड या विल सी दैट. तो जब हमें किसी को कोर्स सजेस्ट करना है तो उसके 3 स्टेप्स हैं. आप पहले असेस करेंगे, आप फिर उनको रिकमेंड करेंगे और आप फिर कोई एक्शन लेंगे. सो व्हेन वी असेस, विल असेस हर एजुकेशन एंड स्किल. वो कौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, उनको अभी सिलाई बुनाई आती है या नहीं,
We'll ask her कि आपके घर पे फोन है या नहीं, आप फोन चला सकती हैं अपने घर पे, ऐप इंस्टॉल कर सकती हैं या नहीं. Then we'll suggest her कि आप या तो मिशन युवा ऐप डाउनलोड कर दीजिए और उससे सीख लीजिए, या आप हाइब्रिड कोर्स भी ले सकती हैं. कुछ टाइम के लिए आप अपने घर पे सीख लीजिए, जब भी आपके पास टाइम है आप आके हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ले सकते हैं. और हम उनको ये 2 कोर्स सजेस्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा सेक्टर स्पेसिफिक यानी कि टेलरिंग. And at the end, what would be the action? We'll ask her to register on Mission Yuva app. उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको बताएंगे मिशन युवा ऐप कैसे यूज करना है, और हम उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे. उनसे पूछेंगे बार बार कि आपको सही लग रहा है कोर्स या नहीं, आपको ऑफलाइन आना है या आपको किसी और सपोर्ट की जरूरत है या नहीं. Now let's move to second case study. This is Zara. She wants to start a construction business and she's a fresh graduate from college. Her problem and her requirement is कि मुझे one-on-one mentorship चाहिए. तो आप उसको क्या सजेस्ट करेंगे? ऑफलाइन. एंड कौन सा कोर्स सजेस्ट करेंगे? Okay, let's see. So we'll assess her education and skill because she's a fresh graduate. She might know a lot of things already and she might have device as well, phone as well. So we'll suggest her कि आप ऑफलाइन मोड की में लर्निंग कीजिए ताकि आपको one-on-one पीयर सेशन, पीयर रिव्यू और आप साथ में सीख सकें. एंड साथ में आप ये 3 कोर्सेज कीजिए. आप एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीखिए, आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस के बारे में सीखना है आप उसके बारे में सीखिए, और आप साथ में टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखिए. एंड साथ में हम उनसे मिशन युवा ऐप डाउनलोड कराएंगे, उनको रजिस्टर कराएंगे एसपीडीयू सेंटर पे और उनकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे. नाउ दीज आर द थिंग्स that I wanted to discuss with you in capacity building. Capacity building एक ऐसा पार्ट है जो अभी भी डेवलप हो रहा है. जैसे जैसे सारा कोर्सेज बनते जाएंगे, मोड्स ऑफ डिलीवरी बनते जाएंगे, हम आपको बताते रहेंगे कैसे इम्प्लीमेंट करना है. ये एक आइडिया है जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे. ये इमीडिएटली स्टार्ट नहीं हो रहा है, बट जैसे स्टार्ट होता जाएगा we'll let you know. Now the second component of this particular presentation is live app demonstration. So I would invite Tabassum ji कि आप आके एक बार ऐप डेमोन्स्ट्रेशन कीजिए. Good afternoon, everyone. Myself, Tabassum Gilani. I'm from Skill Development Mission. Probably I'm the last caller of the innings, and I know the last caller gets this login. But I assure you that I'll run through the app and its features in as much brief time as possible. But at the same time, we have to do justice to the app which has been developed since last so many months. A lot of efforts have been put into it. So उन सब efforts का use तब होगा when people come on the app and when our government officials know that what features and modalities does the app have. Is that working? As you were already informed in the earlier sessions about the capacity building, skill and entrepreneurship and management related courses. इंट्रोड्यूस करें आप कौन है सर अपना I think the mic was little far. Myself Tabassum Gilani. I am from J&K Skill Development Mission. We have been involved with the development of this app, and I have been entrusted with the job of running through the app. The app is already available on the Play Store and is accessible for iOS users also. आप सब ने ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया होगा. आस्था जी ने आपको एक QR कोड उसका दिया था. उसमें जब आप रजिस्टर करेंगे, you can register using your email ID or your phone number. You will get an OTP and all the validations which are required. I will not go into that. ये आजकल सभी ऐप्स पे कॉमन चीज़ है ये सब चीज़ें होना, तो इस पे भी वैसा ही चलेगा. आप अपना प्रोफाइल जब क्रिएट करेंगे, प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद इट विल आस्क यू फॉर योर एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, राइट? At least 3 or 4 areas of interest, because there is a lot in the app. It's an aggregator app. As we run through the app, you will come to know that what all features it has.
all I want to say initially is that the app is not only for the applicants of the UVA, but it can be useful for any person who wants to do upskilling for himself, who wants to be engaged, or many more things. As we go, we will come to know. So as soon as you create your profile on the app, you will be asked to give your 3 areas of interest. Say for example, somebody is interested in hospitality and protocol, he is interested in bakery and confectionery, and something related which he is intending that I want to have a business, or I want to upskill myself into this. Based on your areas of interest, the app will put certain questions to you from the relevant fields which you have selected, to assess how much you know about the areas of interest which you have selected. After assessing your present knowledge, जैसे आस्था जी ने अभी बताया था कि ये applicants, when she gave an example of Asha and the other one, कि आप उसको assess करेंगे, उसका अभी क्या knowledge spare है उसका, then you will assess that what is pending. So these questions will assess the knowledge base of the user, and based on that it will suggest you the skill courses which have been categorized into 3. Beginners courses for those who don't have any knowledge but have only interest, and the intermediate courses who have certain knowledge but not up to the mark, and those who have enough knowledge they want to go into the advanced courses. All the skill courses have been categorized into 3. The beginner level courses, intermediate, and the advanced level courses. And the app will suggest you that are you fit for beginner, are you fit for the intermediate, or do you require the advanced level courses. It will suggest you based on the questionnaire which it will put to you once you will be on the app. Then the features of the app, the first one which you have already gone through is about the application for the Mission UVA. There are 3 types of applications. You can apply for a nano enterprise, you can apply for an MSME in focus and sunrise sectors, you can apply if you are an existing enterprise in MSME and collectives, you can apply for that scheme, or if you are a new neo innovator, then you can apply for that. You can apply for only one. जैसे ही मैंने इसको click किया था तो it gave me a prompt that you can apply for only one scheme. The one scheme is जो हमने 4 scheme जिसमें 4 different type के जो entrepreneurs हमारे पास हैं उसके बारे में. जैसे ही आप अप्लाई करेंगे it will open a full application page. आप अपना details उसमें डालते जाएंगे and your application will be submitted. Push SMSs will be sent on the registered number. जिसने इसमें अपना नंबर डाला होगा, मोबाइल नंबर या आपसे मांगता रहेगा, तो उसमें पुश SMSs आ जाएंगे. जैसे आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, आप रजिस्टर हो गए हैं, या उसके बाद जो भी इसमें आगे प्रोसेसेस रहेंगे, तो you will be kept informed with the push SMSs. Now the first 3 portions on the app, the project report, this is more relevant to the UVA before we go to the other features. जैसे ही आपका कोई एप्लीकेंट युवा के लिए अप्लाई करता है, डेफिनेटली ही विल बी रिक्वायरिंग ए प्रोजेक्ट, ही विल बी रिक्वायरिंग ए डीपीआर जो उनको सबमिट करना है अपना लोन एप्लीकेशन के लिए या जिस भी एंटरप्राइज में वो जाना चाहते हैं. सो फॉर दैट हेल्प देयर आर 3 थिंग्स अंडर द प्रोजेक्ट रिपोर्ट टैब. वन इज ए डीपीआर जनरेटर मैनुअल. आप इसमें देखेंगे, आप अपने डिटेल्स इसमें मैनुअली फिल करेंगे, बेसिक डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, what all details it will ask, you will fill them and it will generate a DPR, but it's a manual DPR generator. मतलब what all inputs you are giving, it will formulate it into a DPR. Another one is a DPR generator using AI. Here we have used AI. It will ask you certain basic things, your business activity क्या करना चाहते हैं, certain आपके financials क्या हैं, आपका fixed capital, total cost वगैरह कितना है. इसके बेस पे using AI in the backend, it will generate a DPR for you, which can be downloaded in the Word format, which can be downloaded in the PDF format. आपने उसको और फाइन ट्यून करना है, आपने उसको एडिट करना है, तो these two will help you to develop a DPR which you will have to submit. The third one is there is a repository of approved DPRs. It's not the repository of just DPRs. This is a repository of those DPRs
which have already been approved by various financial institutions और इनकी लोन डिसबर्समेंट हुई है। आप यहाँ देखेंगे DPR repository पे क्लिक करेंगे, then it will open a sector। ये सब चीजें चाहे आपके DPRs हों और it is your skill related courses, they all have been categorized into sectors। These are 27 sectors right now which are on the app। What are these 27 sectors? Basically these 27 sectors are the sectors aligned with National Skill Development Corporation। National Skill Development Corporation NSDC जो है, there are more than 56 sectors, but right now the data and the courses which we have here on the app, they have been classified into 27 sectors। That is what this, and और इससे आपको it gives you an ease of going through the app। आप एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं, आप अपैरल मेडअप्स, जैसे अभी हम ये सिलाई बुनाई, इट विल कम अंडर अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग। देयर इज ऑटोमोटिव, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंस्ट्रक्शन, डोमेस्टिक वर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स, all you can think of is available there, whatever we can think of। Definitely there will be a scope of improvisation, and based on your feedbacks and inputs, this is an ever improvising and upgrading app which will be going on the go। तो जैसे ही आप अपना सेलेक्ट करेंगे, say for example somebody will select, he is planning for something related to apparel and made ups, तो यहाँ सब सेक्टर में देखिए apparel, made up and home पर। Okay। DPR repository, we will select healthcare, leather, other sectors forward, tourism and hospitality। Tourism and hospitality में he wants to start an event management business, event services, food services, outdoor activities and other services। आप इसमें से जो भी कोई सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप अपना फिक्स करेंगे आपका मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम कॉस्ट। बोला सर, यहाँ ये इसमें किया है, मतलब हमारे यहाँ एक साइमल्टेनियसली काम चल रहा है होम सिटी। आई वाज सी यू गुलमर्ग, आई वांट टू इस फोरम को सब नॉलेज हो, अच्छा खासी बात है, तभी मैंने बात की। तो वहाँ क्या होता था सर, जो हमारा विंटर आता है सर, पीक सीजन, बिकॉज आप अगर कोर्ट ऑर्डर्स देयर इज लिमिटेड बेड कैपेसिटी, मतलब हम 12 इवन अगर ना भी हो, या तो हमने उसको सीमेंट कंक्रीट जंगल बनाना है, अदरवाइज वहाँ 1200-1500 से 2000 से आगे बेड कैपेसिटी में इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज वेरी स्मॉल प्लेस। तो अब वो फार्मेशन, गवर्नमेंट फार्मेशन में बोलते हैं, मतलब प्रोडक्शन की बात नहीं, उसमें बड़ा वो राइगोरस एक्सरसाइज है। अब एक स्कीम आई सर होम सिटी, और अगर आज आप देखोगे सर उतने ऐसे होटल वहाँ गुलमर्ग में नहीं है जो गांव में लोगों ने खुद बनाए, एक उपलब्धि आ गई। अब मैं यहाँ देख रहा था कि वो होम सिटी वाला कहीं हमने इसको मर्ज करना है। अब उनके पास क्या है, हम मतलब जो पीक सीजन आता है वो 1 साल का कमाते हैं, एक विंटर में कमाते हैं, और वो अगर घर में 3 भाई, एक के पास गाड़ी है, दूसरी रजिस्ट्रेशन किया होम स्टे के लिए, और तीसरे मतलब एक फुल पैकेज है फैमिली के लिए। ये इसलिए कि एक यूएसपी हमारा है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, हम बोलेंगे 1 सब डिवीजन 1 प्रोडक्ट, मतलब गुलमर्ग सब डिवीजन के लिए, उरी के आधे पार्ट के लिए, और फरीदाबाद साइड में भी 1-2 जगह ऐसे, तो उनके लिए हम ये अच्छा इसमें नहीं देखा। ड्रॉप डाउन मेनू में ये सवाल सबसे आपका होगा कि क्या स्किल्स कहीं हमने जो ये ड्रॉप डाउन मेनू, ये कोई मतलब नॉमेनक्लेचर कोई डिक्शनरी वाला है कि ऐसे डाल दिया? नहीं, मैं आपसे वही कह, जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स जो हमने चूज किए हैं यहाँ, दे आर अलाइन्ड विद द NSDC सेक्टर्स, जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। पर आपकी बात सही है, अगर हम टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी वाला चूज करते हैं, देयर शुड बी होम स्टेज, बट व्हाट वी हैव, वन पॉइंट आई वांट टू रेज कि जैसे कि अभी इन्होंने जैसे होम स्टे बोला, वैसे अगर हर डिस्ट्रिक्ट को लगता है कि कोई पर्टिकुलर सेक्टर है जिसमें उनका ज्यादा जो है बिजनेस एक्टिविटीज हो सकता है, देन आप कंसर्न JKEDI या जो एक्सपर्ट्स है उसके साथ बैठ के जो उसका DPR कुछ 2-4 मॉडल DPR बनवा के एंड देन शेयर विद अस, उसको भी यहाँ पे सर अगर नहीं, ये मैं इसलिए बात हम आपकी यूज करना चाहते हैं। ये देखिए सर, डाउन टाउन में अगर आप कुछ करना चाहते हैं, हर दिन सोशल पर्सन, हमने देखा कि हमारे जो सिस्टर्स वगैरह दे यूज टू गो फॉर स्मॉल डोज, मतलब मिठाई वगैरह, इसका भी काम बहुत छोटे से वो काम है हमारे। इसी तरह ये बड़गाम का ये हर हमारे यहाँ अगर कुछ है तो किसी को पैक करने की जरूरत डेफिनेटली है। अगर आप ये बोलोगे कि सर मैन्युफैक्चरिंग में हमने देखा नहीं, वो तो वहाँ का स्कोप हर डिस्ट्रिक्ट का है कुछ ना कुछ एक्टिविटी। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा
यहाँ से ड्रॉप डाउन में अवेलेबिलिटी यहाँ पे रोल है एसपीडीयूज का, डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक जो है उसमें अपने डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक कुछ प्रोजेक्ट्स जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है वो आप यहाँ पे दो, सो दैट वी विल पुट देयर, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट से अगर कोई ढूंढे तो उसको एक जगह नजर आए। नहीं कि आप हमारे एरिया के हैं 5-6 लोग जो इंडस्ट्रीज के लॉट ऑफ, क्योंकि वो तो उसके पास डेटा भी रहता है। मतलब मैं बोलूँगा तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँगा, उसके पास तो डेटा है। Sir, most of this repository जो इसमें है, there are 1800 DPRs in this repository currently. 1800 DPRs approved, and these DPRs we have acquired from NABARD and we have acquired from JKEDI mainly. लेकिन इसमें definitely as I said that कुछ छूट रहा होगा या कुछ जो अभी नई अपकमिंग स्कीम्स हैं, wherever we can get the information we can put it on the app. As I said that there are versions coming up and it's an ever ऐप आजकल एक ऐसी चीज है, अगर आपने इसको 2 महीने तक आपने अपडेट नहीं किया तो आप obsolete हो जाएंगे. Technology is an ever emerging sector right now, so these all things will be incorporated. Sir, I have been trying to register myself since morning. It's showing this error repeatedly. I don't know. नहीं ये हो जाएगा सर. There must be something going on at the developers end. Developers end पे कुछ अभी काम चल रहा होगा. That's why you are not able to register. But actually, in the Play Store, in the comments also. Yes, it is on the Play Store. It is on the Play Store, but downgraded version. Okay. Not aligning with the version that has been. yes. Fine. Yes, sir. This is the latest version which. This one बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, आफ्टर ऑल जो इनकॉर्पोरेटेड हो गया है, जो भी इश्यूज आ रहे हैं इसको हम लोग पुश करा देंगे। जी जी। कुछ बग फिक्सिंग अभी भी इसमें चल रही है, इम्प्रोवाइजेशंस चल रही है. वंस वी फ्रीज दीस थिंग्स एंड इट विल बी पुट इनटू प्रोडक्शन, तो एक स्टेबल वर्जन आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा. जब तक आप लोग नहीं शुरू करोगे, जब तक आप रिपोर्ट नहीं करोगे, ये इश्यूज नहीं रिजॉल्व. ऑफ कोर्स आप ये सोचोगे कि मेरे को तो 100% आप फर्स्ट डे स्टार्ट करो, आपको 100% फर्स्ट डे बढ़िया ये सब चलता हुआ जैसे आप बेसलाइन सर्वे का आप लॉन्च देखो ना, आपको 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक कितने इश्यूज आए, बट आफ्टर 10th जनवरी पूरा स्मूथ हो गया. 10 दिन तो, बट उसके लिए 10 दिन के लिए यही है कि आप लोगों का एग्रेसिव यूज चाहिए. अब हमारा ग्रुप भी है, आप लोग सब लोग यूज करो, आपको जहाँ पे जो एरर आ रहा है आप यहाँ पे डालो. So there should have been a testing phase, sir. So testing phase. आप यूज करो ना, आप यूज. सर आई विल कमेंट ऑन दिस. सर आई विल कमेंट ऑन दिस. देखिए हमारा जो हमारी टीम है, से टीम ऑफ 5 or 10 people, we have gone through this app and we are checking it again and again. We have tested the most nitty-gritties जो इसके intricates थे, we have tested them. But जब एक larger quorum इसको test करेगा, we can never see all the features. A team of 10 people cannot, because as we go you will see that there is lot of data on the app, lot of functionalities are there. तो जितना यूज होगा उतना ये स्मूथन होता जाएगा. Another thing that needs to be taken care of is the lag in the app, and then it will have more traffic. Of course, sir, load testing and all will be done before it is put on the production. These all things the technical team is looking into it, sir. Sir, you guys have to use it to make it means fine. मतलब उसमें जो है ना, जो भी errors आएंगे, the process is that now the app is there. अब आप बैठे रहोगे कि हम जब तक ये पूरा बढ़िया नहीं करता हम जाके स्टार्ट करेंगे, वो नहीं है. आप स्टार्ट करो, आपको जो एरर्स आ रहे हैं आप एरर को व्हाट्सएप ग्रुप पे डालो एंड देन वो तुरंत So at the DPR modules, one is DPR repository. There are repository of, as I said, 1800 DPRs covering almost all the sectors. जितने possible हैं हमारे माइंड में आ सकते हैं वो सब वहाँ पे हैं. Then as per the directions of worthy chief secretary, हर एक DPR को एक DPR at a glance. This is still in developing phase. देखिए अभी इसमें एरर आ रहा है, इट्स इन डेवलपिंग फेज. आपका जितने भी इसमें 1800 DPRs हैं उन सबको हमने ब्रीफ करके एक 1 पेजर बनाया है, which we call it DPR at a glance. So a user who wants to go through a DPR, he is not required to go through all the DPR, which is sometimes
a 10-page document, a 9-page document, a 15-page document. He can open DPR at a glance and see that if it suits his needs and he wants to go more deeper into it, then he can open the complete DPR. So ये भी आपके app पे this all is also available. So this was about the project report part. आपका DPR generate ये वहाँ पे करेगा manually, आपको DPR generate करके देगा ये using AI, and then as you are already aware that SBDU is there to handhold. तो SBDU उस generated DPR को fine tune करके handhold कर सकता है before it is submitted to the concerned financial institution for loan dispersal. Then there are government schemes which are aligned on this app. इसमें जितने भी departments we could think of and we have written to all the departments, maximum data हमारे पास आया है. Various departments for implementing various schemes, उनका सारा data हमने इसमें aggregate करके रखा है. But I acknowledge that there will definitely be certain schemes still missing from this जो हम तक नहीं पहुंची हो. Once again, जैसे सर ने कहा, इसको यूज करेंगे. You will be coming to know that कोई scheme इसमें missing है which you are aware of. Please give inputs to us so that we explore that and we put more things on it. सर डिपार्टमेंट वाइज एक ना हेडर जो है डिपार्टमेंट वाइज भी होना चाहिए. Sir, it is there, sir. It is there, sir. सेक्टर वाइज नहीं, सेक्टर वाइज. Sir, department wise भी मिलेगा, sir. Let me explore this. Sir, please bear with me. First one is scheme advisor. Scheme advisor में इसमें आप जब क्लिक करेंगे, scheme advisor is made once again based on the database. इसमें जितने भी स्कीम्स हमने डाले हैं, आपको क्रेडिट स्कीम एडवाइजर मिलेगा, दूसरे स्कीम गाइडलाइंस मिलेंगे. इसमें सर्टेन इनपुट्स इट विल आस्क फ्रॉम यू. व्हेन यू गिव सर्टेन इनपुट्स इनटू दिस, द डेटाबेस विल फेच द स्कीम्स व्हिच आर रेलेवेंट टू यू. जैसे आप इसमें माय स्कीम में देख रहे हैं, आप इसमें अपने इनपुट्स जब फीड करेंगे तो बेस्ड ऑन योर गिवन इनपुट्स इट विल एडवाइज यू दैट व्हिच स्कीम्स आर रेलेवेंट टू व्हाट यू आर सर्चिंग फॉर. चाहे वो किस डिपार्टमेंट की हो, उस स्कीम को अप्लाई करने के लिए जो आपको URL उसका चाहिए. Either it is API integrated. Most of the things departments we have integrated through API, means you can apply right from this app and the application will be submitted. अगर कहीं पे due to some technical glitches which are still going on, अगर API integration नहीं हुई है, तो वहाँ पे हमने उस डिपार्टमेंट का जो एप्लीकेशन वाला URL है वो हाइपरलिंक कर दिया है. इट विल टेक यू टू देयर पोर्टल एंड देयर यू कैन अप्लाई यूजिंग देयर व्हाटएवर मॉडलिटीज आर रिक्वायर्ड देयर. देन आफ्टर स्कीम एडवाइजर, ये गवर्नमेंट स्कीम्स आप यहाँ देखिए. जैसा आप कह रहे थे, डिपार्टमेंट्स यहाँ हमने मेंशन किए हुए हैं. एज फार एज माय लेटेस्ट नॉलेज इज कंसर्न, देयर वर 16 to 18 डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी अलाइंड. तो डिपार्टमेंट्स यहाँ है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की है, एनिमल हस्बेंड्री, कोऑपरेटिव्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम, NULM, आपका खादी विलेज मिशन यूथ, रूरल डेवलपमेंट, सेरिकल्चर, and these certain departments जिनका information. Again, I'm saying that there will be definitely certain departments which we have missed, and until and unless it's a team effort, आप हमको inputs दीजिए and those things will be incorporated. Sorry sir. हॉर्टिकल्चर के स्कीम्स नहीं है. Sir, horticulture के schemes, HADP will be there. Then there are categories also. ये schemes जो हैं, एक तो जैसा कि हमने department wise मैंने आपको बताया, and I'm acknowledging that there will be some departments missing. दूसरा categorization इसका जो किया है, that has been categorized as self-employment वाली schemes आपको देखनी है, or are you looking for something, or are you looking for skills and employment? We have categorized them. कोई self employment schemes हैं, कोई आपकी scholarships लेके कोई schemes है जो skills में upgrade करना चाहता है, या उसको छोड़ के all others have been clubbed together. आप यहाँ देख सकते हैं others में there is micro food processing and all other whatever schemes we could gather, all are there. Again I am saying either they are API integrated, or there is a hyperlink which will take you to the relevant page of the department where you can apply for the scheme if they have it. If they don't have it, then a PDF or a Word format of the guidelines of the scheme और कहाँ से आपको apply करना है, किस ऑफिस में जाना है, that all information is provided into this. इसी तरीके से क्रेडिट लिंकेज की स्कीम्स हैं. आप कुछ लोन्स अप्लाई कर सकते हैं क्रेडिट लिंकेज स्कीम्स जो JK बैंक, NABARD, पंजाब नेशनल बैंक,
and State Bank of India. These 4 banks have been integrated through API. आप JK Bank की schemes में जाएंगे, it will open. You have to select the scheme. Like there is a livelihood generation scheme for dental professionals. You will choose it. You will fill other modalities. और आप इसी ऐप के थ्रू JK बैंक की इन स्कीम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन का ट्रैक भी रख सकते हैं. It's not important that you go to the JK Bank's that portal where you have to apply. It has been API integrated. Then there is information about startups which are covered under Mighty. There is information about the incubators which are जो Mighty के incubators यहाँ run हो रहे हैं. It's lagging a little bit. There is आप देखिए यहाँ पे इंक्यूबेटर वाला जो हमारा खुल गया है. देयर इज एन इंक्यूबेशन सेंटर. इंक्यूबेटर जैसा अभी डॉक्टर बुरहान साहब कह रहे थे, SMVDU का है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू and other incubation centers. These are those incubation centers which are supported by Mighty. Then there are other incubation and innovation centers जो यहाँ UT गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में चल रहे हैं. आप देखेंगे बाबा गुलाम शाह बादशाह का यूनिवर्सिटी जो है BGSDU, उनका incubation center है. When you will click here, it will give you all the information about the incubation center or will take you to the page which is dedicated for incubation center in the particular university or department. So those who want to be incubatees for developing certain business modules, they can have the information through this app. They can register themselves for the incubation through this app. Then we have capacity building. I'll come a little later. Then we have career counseling. Career counseling module में आपके पास when you click it, आपके यहाँ again as I said that we have categorized it into the 27 sectors. कैरियर काउंसलिंग में एक मेरा यहाँ पे पॉइंट्स होगा कि अभी तक जो है लगभग इसमें 1000 कैरियर काउंसलर्स का फोन नंबर एंड डिटेल्स है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग एक्टिव नहीं है. मतलब अभी सब सोया हुआ है क्योंकि उसको पता नहीं है अब तो लॉन्च होगा तो नहीं होगा, ट्रैफिक बढ़ेगा. तो देन व्हाट वी विल डू कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कैरियर काउंसलर का लिस्ट बना के दे देंगे सो दैट आप जो है ADDC अपने लेवल पे मीटिंग्स बुलाएं और उनको बोले कि अगर आपको ऐप पे रिक्वेस्ट आता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड. अब यहाँ पे डाल दिए हैं, अब वो रिस्पॉन्ड करेगा नहीं तो फिर लगेगा कि पता नहीं ये काम नहीं कर रहा. यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देख रहे हैं जैसे देखेंगे एग्रीकल्चर में देन एग्रीकल्चर में क्लिक करने के बाद जो है एक काउंसलर का नाम आया है साइमा को सर, उसका ईमेल आईडी फोन नंबर इज मास्ट. फोन नंबर मार्क्स होता है बट आप रिक्वेस्ट कॉल बैक कर सकते हैं, आपको मैसेज कर. यस यू कैन रिक्वेस्ट ए कॉल बैक. मैंने यहाँ पे मैसेज और कॉल बैक करके देखा है तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करते. नहीं सर, दे आर इनएक्टिव. तो अभी थोड़ा वो इनएक्टिव है. तो बेसिकली एक आध मीटिंग अगर ले लेंगे ना तो देन वो दे विल गेट एक्टिव. अच्छा मेरे को ये रिस्पॉन्ड भी करना है. तो SBDU लेवल हर डिस्ट्रिक्ट का ये जो कैरियर काउंसलर का लिस्ट है दैट वी विल प्रोवाइड. आप लोग एक थोड़ा सा उसको इनर्जाइज करें. इसमें आपके पास करियर काउंसलर के साथ दोनों चीजें पॉसिबल है. यू कैन सेंड ए मैसेज एंड देयर विल बी अ चैट बॉट और यू कैन रिक्वेस्ट ए कॉल बैक. जैसा सर ने कहा कि वंस दिस विल बी एक्टिव बट द फीचर इज ऑलरेडी देयर इन द ऐप. देन another feature under the career counseling is career paths. Career paths में आप देखिए, for example somebody wants to go into engineering. See, as I said that the app is useful for varied sector of people, all the youth, right from the middle classes up to the middle class means middle class of education. 8th में कोई पढ़ रहा है उससे लेके कोई आपका PhD तक जाना चाहता है, he can use the app. There will be some sort of information. देखिए इस ऐप के पहले जो है अगर एक कॉमन सेंस से सोचे, एक नॉर्मल बच्चे से पूछे तो उसको इंजीनियरिंग और मेडिसिन के अलावा कुछ बाकी नजर ही नहीं आता है. इसमें इतने सारे सेक्टर से कम वो कुछ तो पता चलेगा कि इतने सेक्टर हैं, ये कुछ उसमें होता है, ये कोर्सेज हैं, ये एक्टिविटीज हैं. मतलब टोटली वी आर टुवर्ड ओनली इंजीनियरिंग मेडिसिन बट इतने सारे एक्टिविटीज हैं. मतलब देयर इज लॉट टू एक्सप्लोर. आप जैसे सेक्टर्स इसमें देख सकते हैं. there is BFSI, there is defense, design, education, engineering, fine arts, fisheries. There are a lot of sectors. जैसा कि सर ने कहा कि ये आपका विजन ओपन कर देगा अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कि आपके और भी फाइन. once you have embarked on something, you want to do something, say for example in fisheries,
आप यहाँ पे फिशरीज सेक्टर चूज करेगा द कैंडिडेट, चाहे वो अभी 8th क्लास में ही है या 10th क्लास में है, एंड ही वांट्स टू नो दैट अगर मुझे फिशरीज में अपना करियर परस्यू करना है तो मुझे क्या करना है, वेयर आई हैव टू गो। तो यहाँ पे आपको करियर पास खुलेंगे। अगर इट इज टेलिंग इफ यू वांट टू बी ए फिशरीज डेवलपमेंट मुझे नहीं ऑफिसर, लगता किसी को पता होगा कि फिशरीज ऑफिसर करने के लिए क्या करना पड़ता है। आप खुद देखो ना, मतलब मुझे नहीं पता कौन सा एग्जाम होता है, पर यहाँ पे मैं तुरंत देख सकता हूँ। यस दैट मैम वी एग्री, आपके पिन पॉइंट करने से पहले वी एग्री कि देयर विल बी सर्टेन सेक्टर्स व्हिच आर नॉट ओपनिंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब आप देखिए हर एक मॉड्यूल में कितना इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन के सब मॉड्यूल्स में कितने सेक्टर्स हैं उनको ओपन करना। It is practically impossible for a team, for small team of 5-10 members to go through everything. मतलब कुछ ना कुछ ग्लिच तो रह जाएगा। Start using the app. But when we जो भी errors है, जो भी app screenshot के साथ with explanation आप ग्रुप पे डालिए। जी, आज से यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट ऑफिसर का मैंने ओपन किया है। इट टेल्स यू कौन से सेक्टर्स हैं, आपका करियर डिस्क्रिप्शन क्या है, दिस इज नेशनल करियर सर्विस का इसका कोड, लिंक अगर आपको अप्लाई करना है एनसीएस के थ्रू इसके लिए उसका लिंक दिया गया है, आपकी क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए, वेयर विल यू स्टडी, किन किन यूनिवर्सिटी, दिस इज अक्रॉस द नेशन, फाइन, दिस इज नॉट ओनली इन जे&के, आपको वो पूरे नेशन में आपको इसके रिलेटेड कोर्सेज कहाँ किस यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ है। वी विल ट्राई दैट उनके हाइपरलिंक्स भी यहाँ हो, बट इट्स ए वेरी अपहिल टास्क टू डू दिस when we are talking across the nation. तो where will you work, आपका पूरा करियर पाथ है। ये कोर्स करने के बाद आपको जब नौकरी कहाँ मिलने के चांस हैं, what is the expected growth, आप पहले क्या करेंगे, then what are your promotion avenues, कैसे आप ग्रो करेंगे अपने करियर में, एंट्री पाथ आपको see it's showing that you should complete your 10+2 in science stream with physics, chemistry, biology, then complete bachelor's degree in industrial fisheries and all the information is there. This is about the career paths. Again, it has been sectored into the 27 sectors as per NSDC. Why everything is categorized as per these sectors? Because it gives us an ease to serve to the database. आपको स्कीम एडवाइजर्स और बाकी जो AI जनरेटेड चीजें वो सब तभी पॉसिबल होंगी when we follow a single protocol. Then there are job opportunities. Job opportunities में now there are youths who are already educated, जो अपना career choose कर चुके हैं. Now they are looking for the job. अब आज की डेट में जॉब के लिए you have to keep your eyes open कि PSC में कब notifications निकल रही है, SSRB में क्या jobs निकल रहे हैं, या प्राइवेट एजेंसीज में क्या जॉब्स निकल रहे हैं। See how difficult it is for a youth to keep track of all these things. और इसके बाद नॉट ओनली लोकल और स्टेट लेवल यूटी लेवल जॉब्स, यू विल हैव टू कीप एन आई कि नेशनली कहीं पे जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, नेशनल में गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, यूटी लेवल जॉब्स इन गवर्नमेंट एंड इन प्राइवेट, then national level jobs in government and in private, then PSU or government undertakings है उनके jobs. This all information will be available here. If we go into job posting, then it will go into 3 categories: UT level, national level. UT level में government and private, आप government में देखेंगे UT level के government jobs में it will open about it will give you information about JKPSC, JKSSRB, JK Bank, JK Police. इन सब के साथ API इंटीग्रेशन कुछ के साथ हो चुकी है, कुछ के साथ अंडरवे है. There are some issues at the NIC end which are being sorted. So once that API integration is done, what will happen कि JKPSC का कोई भी या JKSSRB का कोई भी जॉब नोटिफिकेशन निकलता है, एक तो इस ऐप पे दिखेगा and we can send a notification through push SMS to the user जिसने भी ये एप्लीकेशन अपने पास डाउनलोड करके रखा है. Then in private we have local industry hiring. All the DICs are onboarded into this. जो हमारे यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एक अलग वेब पोर्टल बनाया गया है जहाँ पे वो खुद को रजिस्टर करते हैं और उनके पास जब कोई जॉब वैकेंसी है वो यहाँ पे वो पोस्ट करेंगे. जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता है कि एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन करके अपना जॉब डाल देगा, जब वो जॉब डालेगा तो फिर यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ से आप जब अप्लाई करोगे तो उसको एम्प्लॉयर के पोर्टल पे नजर आने लगेगा. यू कैन अप्लाई. आप अभी जैसे इसमें कोई एक जॉब मुझे दिख रहा है तो यहाँ पे मैं उसको व्यू कर सकता हूँ, मैं उसको अप्लाई भी यहीं पे कर सकता हूँ, मेरी एप्लीकेशन जो है एम्प्लॉयर में सबमिट हो जाएगी. देन इट्स अप टू एम्प्लॉयर कि वो उसमें इंटरव्यूज करना चाहता है, क्या करना चाहता है, हाउ ही वांट्स टू प्रोसीड.
This is UT level. Similarly, there is national level. National level by government, private and PSU. All the notifications will be available here. आपको एक so this app, as we say that this is an aggregator. आपको सारी information एक जगह पे aggregated मिल रही है. After job postings, there is a CV generator. आप किसी को जॉब के लिए अप्लाई करना है तो उसको अपना CV की जरूरत पड़ेगी. So there is a CV generator. आप यहाँ पे अपना फोटो डालेंगे, अपना नाम, बाकी सब चीजें जो आपने प्रोफाइल में भरा है वो ऑटो फेच हो जाएगा. उसको छोड़ के जो आपको और चीजें इसमें डालनी है वो आप इसमें डालेंगे. इट विल जनरेट ए CV फॉर यू. द CV विल बी जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ड डॉक्यूमेंट और ए PDF. अगर आपने उसको चेंज करना है तो उस वर्ड डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करके चेंजेस कर सकते हैं. देन देयर इज इंटरव्यू मॉक्स. इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं. तो उन क्वेश्चंस के लिए अबाउट योरसेल्फ, एडेप्टेबिलिटी एंड लीडरशिप क्वालिटीज, उसको उन very frequently asked questions in the interviews are mentioned here and their answers. So this going through this functionality will help you to get prepared for the interview. Then there is internships. Those people who are जिन्होंने अभी फ्रेश अपनी क्वालिफिकेशंस एक्वायर की हैं, जॉब से पहले वो अपना इंटर्नशिप्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं. वी हैव API इंटीग्रेटेड विद इंटर्नशिप इंडिया एंड इंटर्नशाला. आप इंटर्नशिप इंडिया में क्लिक करेंगे, आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सेक्टर कौन से सेक्टर में आप करना चाहते हैं, क्या स्टेटमेंट वगैरह वहाँ एक्सपेक्टेड है. दीज ऑल थिंग्स विल ओपन देयर. अब इसमें जो चीजें यहाँ ओपन हो रही है, जैसे आप पहले ही देख रहे हैं फिजियोथेरेपी वाला, वो इस हिसाब से मुझे ओपन हो रहा है क्योंकि मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपने प्रोफाइल में जो चीजें दी हैं. One, it will suggest those internships which you have given input during putting your areas of interest. वो तो ये आपको ऑटो जनरेट करके देगा. उसके बगैर आप सर्च कर सकते हैं यूजिंग स्टेट एंड सेक्टर वाले जो सर्च ऑप्शंस वहाँ पे हैं. एंड PM इंटर्नशिप वाला जो स्कीम अभी लॉन्च हुआ है, उसका नोडल डिपार्टमेंट, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर PM इंटर्नशिप स्कीम. that will also be API integrated with this. Then there is इंटर्नशाला. इंटर्नशाला को हमने हाइपर लिंक करके डाला हुआ है. आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे. इट विल गिव यू इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज नेशनल. Then about somebody wants to have information about the education. आपका JK बोपी की नोटिफिकेशंस यहाँ पे है. API इंटीग्रेट हो चुका है. JK बोपी में आपके जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं जहाँ आप अप्लाई करते हैं, किसी ने नर्सिंग के लिए, फिजियोथेरेपी एंड ऑल अदर कोर्सेज व्हाट ऑल बोपी इज टेकिंग केयर ऑफ, those all notifications will be visible here and can be sent as a push SMS to the user जिसके पास ये ऐप डाउनलोडेड हो. करियर काउंसलिंग वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. करियर, इसमें स्कॉलरशिप्स हैं आपके, AICT स्कॉलरशिप्स हैं उन कोर्सेज के लिए जो AICT एफिलिएटेड कोर्सेज इंस्टीट्यूशंस हैं. जैसे आप यहाँ अभी बैठे हैं पॉलिटेक्निक, इस पॉलिटेक्निक में जो भी डिप्लोमास होते हैं दे आर, उनमें AICT के 2-3 स्कीम्स जो है एप्लीकेबल हैं. लाइक देयर इज प्रगति स्कीम फॉर गर्ल स्टूडेंट्स. 50,000 रुपये उनको स्कॉलरशिप मिलता है हर साल का. 3 ईयर कोर्स, फाइन, विद सम राइडर्स के आपका इनकम वगैरह इतना होना चाहिए विच यू आर अवेयर ऑफ कि क्या राइडर्स रहते हैं. देन देयर इज सक्षम फॉर दोज हु आर फिजिकली चैलेंज्ड. एंड देन देयर इज स्वांत फॉर दोज जिनके कोविड में पेरेंट्स की डेथ हो गई है. देन देयर इज स्कीम फॉर दोज जिनके पेरेंट्स का लेबर कार्ड है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं. तो दो स्कीम्स जो हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ स्कॉलरशिप वाले मॉड्यूल से मिलेगा. नाउ आप ये जो सेक्टर स्किलिंग वीडियोस दिखा दीजिए एंड देन बाकी तो ये लोग यूज करेंगे. तो स्किलिंग वाला बस बता के एंड देन वी कैन. फाइन सर, फाइन. नाउ स्किल, दिस इज अ मेजर सेक्टर. इसमें आपके जो युवा कैपेसिटी बिल्डिंग के भी कोर्सेज हैं वो भी आपको यहीं से एक्सेस होंगे. उसके बगैर भी somebody wants to skill himself, learn about anything, maybe his area of interest or the area where he wants to work. तो सेक्टर स्किलिंग पहला इसमें ऑप्शन है, सेक्टर स्किलिंग वीडियोस. सेक्टर स्किलिंग वीडियोस में आप सेक्टर वाइज चूज कर सकते हैं. एज आई सेड 27 सेक्टर्स ऑफ NSDC. once again they have been classified as per that. I'm just taking one, apparel made ups and home furnishing. इधर ये कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं. आप किसी कोर्स पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ आपको मॉड्यूल वाइज ये कोर्स खुलेगा। देयर विल बी मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। इस मॉड्यूल 1 में कुछ वीडियोस होंगे जो आप यूज करेंगे। दीज वीडियोस विल बी प्लेड थ्रू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आपको इन ऐप भी प्ले होंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में भी ले जाएगा। तो ये आप मॉड्यूल वाइज करेंगे। दीज आर सेल्फ लर्निंग कोर्सेज, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। ये कैंडिडेट अपने सेल्फ लर्निंग के लिए, अपने आप को अपग्रेड या कोई स्किल अपने आप में लाने के लिए ये कोर्सेज कर सकता है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज में कुछ और स्किल्स हैं यहाँ पे। दीज आर मोस्टली जो है स्किल्स विच आर रिलेटेड टू आईटी इंडस्ट्री। अनअकैडमी के साथ हमने जो है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पे यूपीएससी, नीट, गेट वगैरह इनके जो उनके पास डेटा है, कोर्सेज हैं, वो यहाँ पे डाले हुए हैं। देन देयर इज नेशनल करियर सर्विस। नेशनल करियर सर्विस अगेन क्लासिफाइड इनटू द सेक्टर्स। आप सेक्टर्स में देखेंगे आपको यहाँ पे उनके रिलेटेड वीडियोस और इंफॉर्मेशन जो है वो खुलेगी। इंटरैक्टिव कोर्सेज, one more module, it is again for IT and marketing only. This is interactive in the sense आप इस पे क्लिक करेंगे, these courses are clickable, the information is clickable, so that is why these are interactive. Then we have focus sectors. आपको एक particular in department के food processing के हैं, film, tourism, health and pharmaceutical, herbal and medicinal plants. These are the courses जो various departments ने, जैसे दक्ष किसान आप सबको पता होगा, उन सब के courses हैं, they are all here. Then we have certified e-courses. Certified e-courses में हमारे पास 3 सब modules हैं: Skill India Digital Courses, NASSCOM courses एंड दक्ष किसान के कोर्सेज जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के हैं। इसमें जो स्किल इंडिया डिजिटल कोर्सेज हैं, इसी स्किल इंडिया डिजिटल कोर्सेज पे दिस हैज बीन एपीआई इंटीग्रेटेड। देयर आर ऑनलाइन कोर्सेज, देयर आर ऑफलाइन कोर्सेज। ऑफलाइन कोर्सेज के लिए ये आपको गाइड करेगा कि कौन सा कोर्स किस सेंटर में अवेलेबल है। ए कैंडिडेट कैन गो देयर एंड ऑप्ट फॉर द कोर्स। ऑनलाइन कोर्सेज में मोस्ट ऑफ द कोर्सेज ऑन स्किल इंडिया डिजिटल हब आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसी स्किल इंडिया डिजिटल हब पे आपके कोर्सेज को हम बंडल करेंगे एज पर द फोर मॉड्यूल्स विच आस्था जी टोल्ड यू दैट कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर युवा के लिए जो ये 4 मॉड्यूल्स हमने रखे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, सेक्टर स्पेसिफिक, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, दे विल बी बंडल्ड इनटू वन। और वहां पे युवा यूजर के लिए अलग टैब रह के वहां पे वो क्लिक करेगा, वो कोर्सेज बंडल्ड होंगे, एक एक करके उसको रजिस्टर करना है और अपनी पेज पे ये कोर्स स्किल इंडिया डिजिटल हब पे कंप्लीट करना है। एंड ही विल बी सर्टिफाइड, ही विल बी गिवन ए सर्टिफिकेट। वो सर्टिफिकेट जो है वो आपकी प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा। Then there are foreign language. I'll just run through them. Foreign languages में 13 foreign languages के videos as well as जहाँ पे videos possible नहीं थे, textual base पे course है, Arabic है, German है, Mandarin है, lot of courses which were available from the open sources have been put there. Somebody wants to go for foreign language. Usually most of the youth here would like to work in GCC countries, तो अरबिक वगैरह वहाँ पे लैंग्वेज चाहिए होता है, तो he can learn basic Arabic language from this app. Soft skills में यहाँ पे हमने कुछ courses रखे हैं. Those who want to learn some soft skills, communication skills, they are there. Future skills में there is one more category developed by the NSDC which is called Future Skills Prime. तो ये भी certified courses हैं. NASSCOM जो मैंने इसमें आपको सर्टिफाइड कोर्सेज में दिखाया था, NASSCOM के कुछ कोर्सेज फ्री हैं, कुछ कोर्सेज पेड हैं। जो कोर्सेज पेड हैं उनमें पेमेंट कैंडिडेट को खुद करनी पड़ेगी until government comes to bail out or something is planned. तब तक फ्री कोर्सेज आर फ्री। सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट विल बी प्रोवाइडेड बाय MSDE, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, व्हिच विल बी एक्सेप्टेबल एंड रिकॉग्नाइज्ड नेशनली। ऑफलाइन कोर्सेज का इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है कि रेगुलर कोर्सेज, इसमें जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं हमारे यहाँ पे JNK यूटी में, उन सब के रेगुलर सर्टिफिकेट, डिग्री, डिप्लोमा, PhD, इंटीग्रेटेड लेटरल एंट्री, PG, UG, all the courses information is here. If you want to go for, say for example, you want to go for a certain course in Kashmir University, आप यहाँ पे उस UG कोर्स में सिलेक्ट करेंगे, वो आपको उस कोर्स के लेके सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐप पे अवेलेबल रहेगी।